شدید دھند لاہور اسلام آباد موٹروے M2 لاہور سے ہرن مینار تک بند کر دیا گیا ہے۔ لاہور ملتان موٹروے M3 فیض پور سے درخانہ تک بند کر دی گئی، جبکہ موٹروے کو مسافروں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا ہے۔ ترجمان کہتے ہیں کہ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ مزید ترجمان موٹروے پولیس کی جانب سے شہریوں کو کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں، جانتے ہیں اسرار خان سے۔ جی اسرار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں دھند کا راج بدستور برقرار ہے۔ آج بھی شام ڈھلتے ہی دھند کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی شدت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نہ صرف قومی شاہراہوں پر مسافروں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے، بلکہ شدید دھند کی وجہ سے موٹر ویز کے بعض مقامات پر حد نگاہ صفر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 کو لاہور سے ہرن مینار تک، جبکہ لاہور ملتان موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے عارضی طور پر بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موٹر ویز بند ہونے کی صورت میں ملتان روڈ اور GT روڈ سمیت دیگر مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں متبادل راستوں پر سفر کرنے والے تمام ڈرائیور حضرات سے یہ درخواست ہے کہ وہ محتاط انداز میں گاڑی چلائیں، گاڑیوں کی رفتار کم رکھیں اور فوگ لائٹس کا استعمال ضرور کریں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں وہ موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے اسرار خان، آپ کا بہت شکریہ۔ باغوں کا شہر سردی کی لپیٹ میں آ گیا، زندگی کو بریک لگ گئی، شہری گھروں میں دب گئے۔ لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسمیاتی پنڈتوں نے آئندہ 24 گھنٹے میں پھر سے بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ باغوں کا شہر سردی کی لپیٹ میں آ گیا، شہری گھروں میں دب گئے۔ لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں پھر بارش کی پیشگوئی کر دی۔ بارش کے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی اور آب و ہوا میں بھی بہتری آ گئی۔ لاہور دنیا کے آلودہ شہروں کے فہرست میں چوتھے نمبر پر آ گیا۔ لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 175 ریکارڈ کیا گیا۔ ببتیاں چوک رائیون روڈ پر سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس 414 ریکارڈ کیا گیا۔ DHA فیز 8 307، شملہ پہاڑی 282، اڈا پلاٹ 268، UMT جوہر ٹاؤن میں شرح آلودگی 265 ریکارڈ کی گئی۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، اسٹیڈیم کے اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا۔ PCB ہیڈ کوارٹرز کی بلڈنگ، ڈریسنگ روم کے کام کا معائنہ بھی کیا۔ محسن نقوی نے انکلوئرز، فلڈ لائٹس اور سکور بورڈز کی تنصیب بھی دیکھی۔ بولے قذافی اسٹیڈیم کا کام 25 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، ٹیم فائٹ کر رہی ہے۔ سائم ایوب علاج کے لیے کل انگلینڈ چلا جائے گا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں زور پکڑ گئیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی قذافی اسٹیڈیم کی بروقت تکمیل کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا، اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ صرف 86 دنوں میں مین بلڈنگ اور ڈریسنگ روم کا کام مکمل ہو جائے گا۔ قذافی اسٹیڈیم کا کام 25 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ ٹیم فائٹ کر رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹیم کوشش نہیں کر رہی۔ سائم ایوب کے حوالے سے چیئرمین PCB نے بتایا کہ سائم ایوب ہمارا اثاثہ ہیں۔ سائم ایوب کی سپورٹس آرتھو کے ساتھ اپوائنٹمنٹ طے ہے۔ اظہر محمود سائم ایوب کے ساتھ لندن جائیں گے۔ چیئرمین PCB نے ڈریسنگ روم اور PCB ہیڈ کوارٹرز کی بلڈنگ کے کام کا جائزہ لیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے اسٹیڈیم کے انکلوژر، فلڈ لائٹس اور اسکور بورڈز کی تنصیب کے کام کا بھی جائزہ لیا۔ PHA کا 8 مقامات پر جین مندر سٹنگ ایریاز کی طرز پر نئے پوائنٹس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہر زون میں نیا اسٹیٹ آف دی آرٹ سٹنگ پوائنٹ بنے گا۔ 25 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ جبکہ DGPH نے منظوری دے دی ہے، واک ویز، ٹف ٹائلز، ہارٹیکلچر ورکس اور فوڈ پوائنٹس بھی بنیں گے۔ PHA نے شہر میں 8 مقامات پر جین مندر سٹنگ ایریاز کی طرز پر
नए पॉइंट्स बनाने का फैसला कर लिया। PHA अपने हर जोन में नया स्टेट ऑफ द आर्ट स्टिंग पॉइंट्स बनाएगा। DG PHA ने नए स्टिंग एरियाज के पॉइंट्स बनाने की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने PHA को जैन मंदिर स्टिंग पॉइंट को पसंद करने के बाद मजीद पॉइंट्स बनाने का टास्क दे दिया है। नए स्टिंग पॉइंट्स पर कवर शेड्स के साथ साथ बेंचेस बनाए जाएंगे। वॉकवेज, टफ टाइल्स, हॉर्टिकल्चर वर्क्स और फूड पॉइंट्स भी होंगे। PHA इंजीनियरिंग विंग के मुताबिक नए पॉइंट्स के लिए PHA आइंदा कुछ रोज में पॉइंट्स का टेंडर जारी करेगा। हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर्स की निशानदही के बाद पॉइंट्स को फाइनल किया जाएगा। मुस्तहिक अक़लियती खानदानों की माली इमदाद का मंसूबा। CM माइनॉरिटी कार्ड मंसूबे की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। 95,340 मुस्तहिक मसीही खानदानों ने दरख्वास्तें जमा करा दी। सालाना 50,000 अक़लियती खानदानों को 3 माह बाद 10,500 रुपये फ्राहम किए जाएंगे। सालाना 2 अरब 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। मुस्तहिक अक़लियती खानदानों की कफालत के लिए CM माइनॉरिटी कार्ड मंसूबे की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया। CM पंजाब माइनॉरिटी कार्ड के लिए 95,340 मुस्तहिक मसीही खानदानों ने दरख्वास्तें जमा करवाई। सालाना 50,000 मुस्तहिक अक़लियती खानदानों को 3 माह बाद 10,500 रुपए फ्राहम किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने माइनॉरिटी कार्ड की मद में सालाना 2 अरब 80 करोड़ की मंजूरी दी। पहले मरहले में 1 अरब 40 करोड़ मालियत के माइनॉरिटी कार्ड तकसीम के लिए वर्किंग मुकम्मल की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर अमूर सरदार अमीर सिंह अरोड़ा को मिनियोरिटी कार्ड मंसूबे पर फौरी अमल दरामद का टास्क सौंपा है। मिनियोरिटी कार्ड्स ATM कार्ड्स की तर्ज पर फंक्शनल होंगी। मरियम नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते मुस्तहिक अक़लियती खानदानों में मिनियोरिटी कार्ड तकसीम करेंगी। मिनियोरिटी कार्ड्स की स्कीम को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया गया है। शहर के सरकारी अस्पतालों के लिए फंड जारी। जनरल अस्पताल को 1 अरब 80 करोड़ जबकि जिनाह को 1 अरब 50 करोड़ रुपए जारी किए गए। महकमे प्राइमरी हेल्थ को 1 अरब 50 करोड़, पंजाब डेंटल अस्पताल को 8 करोड़ 60 रुपए जारी जबकि PIC को 92 करोड़ 8 लाख रुपए मिल गए। सर्विसेज मेंटल अस्पताल के लिए भी फंड जारी। महकमा खजाना ने मुख्तलिफ अस्पतालों को बजट जारी कर दिया। महकमा प्राइमरी हेल्थ को 10 अरब 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी 2 अरब 30 करोड़ रुपए मिल गए। पंजाब डेंटल अस्पताल को 8 करोड़ 60 लाख रुपए मिले हैं। लाहौर जनरल अस्पताल को 1 अरब 80 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जिनाह अस्पताल को 1 अरब 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। PIC को 9 करोड़ 28 लाख रुपए मिले हैं। सर गंगाराम अस्पताल को 1 अरब 50 करोड़ रुपए और सर्विसेज अस्पताल को 1 अरब 60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर को 4 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। गरीब और मतवसत तबके की मुर्गी मटन बन गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत 3 हफ्तों में 200 रुपए किलो बढ़ गई। सरकारी कीमत 595 किलो तक जा पहुंची। साफी गोश्त 700 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है जबकि सेलर्स ने कीमतों में इजाफे को ब्रोकर्स और फार्मर्स की कारस्तानी करार दे दिया। पहले मटन, बीफ और अब ब्रायलर भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। साफी गोश्त की कीमत 700 रुपए तक पहुंच गई। गरीब तो दरकिनार मतवसत तबका भी खरीदने की सकत खोने लगा। गुज़श्ता 3 हफ्तों में ब्रोकर्स और फार्मर्स के गठजोड़ ने ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। ज्यादा मुनाफा कमाने के गर्ज से जानबूझकर तलबो रसद का तवाजुन बिगाड़ कर ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ाई जा रही हैं। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर भी गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं। गुज़श्ता कई महीनों से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशय खोरनोश की किल्लत का सामना है। अशय खोरनोश ना होने की वजह से सेल इंतहाई कम रह गई। सेल्स गिरने से यूटिलिटी स्टोर्स की मुलाजमीन की तनख्वाहें निकालना भी मुश्किल हो गयी। 6 तारीख होने के बावजूद हजारों मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिल सकी। महकमे दाखिला जेलों में 40,000 किताबें रखेगा। 12,000 किताबें पंजाब की जेलों को भिजवा दी गई। हर जेल की हर बैरक में लाइब्रेरी बनाने का काम तकमील के करीब। महकमा दाखिला ने जेलों के 132 रैक बेच दिए। 1 बैरक 1 लाइब्रेरी के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। कैदियों के लिए जेलों में लाइब्रेरियां बनाने के मंसूबे में अहम पेशरफ्त हो गई। महकमा दाखिला पंजाब ने जेलों के लिए 12,000 किताबें सूबे की मुख्तलिफ जेलों में भिजवा दी हैं। महकमा दाखिला जेलों में 40,000 किताबें रखेगा। हर जेल की हर बैरिक में लाइब्रेरी बनाने का काम तकमील के करीब पहुंच चुका है। महकमा दाखिला ने किताबें रखने के लिए जेलों को 132 रैक भी भेज दिए हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने 1 बैरिक 1 लाइब्रेरी के नाम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका मकसद कैदियों को किताब बीनी की तरफ रागिब करना है। एपिक्स कमेटी के फैसले पर महकमा दाखिला ने हर जिला में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियां बना दी। जिला का डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का सरबराह होगा। ISI, MI, CTD, स्पेशल ब्रांच, IB, FIA के नुमाइंदे मेंबर होंगे। कमेटी दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएगी। डिसइंफॉर्मेशन और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की रोकथाम भी करेगी।
दाखिला पंजाब ने एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में हर जिला में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियां बना दी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का सरबराह जिला का डिप्टी कमिश्नर होगा। कमेटी में CCPO या DPO मेंबर होंगे। तमाम मुतल्लिका महकमों के ग्रेड 18 के अफसरान कमेटी के मेंबर होंगे। स्पेशल ब्रांच, CTD, FIA, IB, ANF, ISI और MI के नुमाइंदे भी कमेटी के मेंबर होंगे। ये कमेटी इंसदाद दहशत गर्दी पर जिला के हर सतह पर एक्शन प्लान तरतीब देगी। बिजली चोरी, नारकोटिक्स, स्मगलिंग पर भी कमेटी कार्रवाई अमल में लाएगी। नॉन कस्टम्स गाड़ियां, गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। ये कमेटी दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन को भी यकीनी बनाएगी। कमेटी डिस इन्फॉर्मेशन और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की रोकथाम करेगी। कमेटी का इजलास हर माह बाकायदगी के साथ DC की सदारत में मुनक्किद हुआ करेगा। सब्जाजार सिवक सेंटर और अलमदीना सेंटर के अतराफ के इलाके का सीवरेज निज़ाम खराब है। चमन कॉलोनी शाहदरा में सीवरेज का निज़ाम नाकिस होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। शहर के मुताद्दद इलाकों की तरह सब्जाजार सिविक सेंटर और अलमदीना सेंटर के अतराफ के इलाके का सीवरेज निज़ाम खराब। मकीनों और मुकामी ताजिर बरादरी का कहना है कि गलियों में गहरे गड्ढे पड़ चुके। सीवरेज के नाकिस निज़ाम से परेशान रहते हैं। अहले इलाका ने मसाइल हल कराने का मुतालबा किया है। चमन कॉलोनी शाहदरा का सीवरेज सिस्टम नकारा होने से गटर उबलने लगे, जिससे मेन रोड के साथ साथ गलियों में जमा पानी इंतजामिया और हुकूमत की नाअहली का सबूत पेश करने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि 5 साल से हुकूमत की दादरसी के मुंतजिर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हुक्मरान वोट लेके अवामी मसाइल हल करना भूल जाते हैं। तारिक चौक फिरोजपुर रोड पर बिजली के बेहंगम तारों के गुच्छे इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि 1 साल से लटकते तार मौत का साया बनकर हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, मगर इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अहले इलाका ने लेस्को चीफ से मुतालबा किया है कि बिजली के बेहंगम तारों को बुलंदी पर बांधा जाए। कुमाहा रोड सतार कॉलोनी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल न किया जा सका। मकीन कहते हैं इंतजामिया की गफलत के बायस साफ पानी से महरूम है। घरों में सीवरेज मिला पानी आता है, जो कई बीमारियों का सबब बन रहा है। टीमें आती हैं, देख के जाते हैं, लिख के लेकर चले जाते हैं, चालू नहीं करते। फिलहाल अभी तो टीमें आई थी, ये अंदर से उन्होंने दोबारा इसका बोर वगैरह किया है। इसका अब इश्यू जो है ना मीटर का है। इसका वासा वाले आए थे, पता नहीं, वो कह रहे हैं कि भी इसका मीटर हम लगवाएंगे। अभी मीटर के ऊपर इस इलाके में पानी का मसला तो है, काफ़ी दूर से लेकर आते हैं पानी, लेकिन अब इसका मीटर लगे तो ये चालू होगा। चिराग पार्क इस्माइल नगर का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता कई माह से इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल के लगे होने के बावजूद इलाका मकीन साफ पानी को तरस गए। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को तरजीही बुनियादों पर फाल करवाने की अपील की है। महकमा तालीमी दर्जा चहारम के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाजी मुजाहरा किया। 4 माह से 334 मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी गई। मुलाजमीन ने बैनर्स थामे सेक्रेटरी खालिद मंजूर वट्टू और CO नज़ीर हुसैन चीना के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन कहते हैं कि पीर तक मुतालबात ना माने गए तो सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर धरना देंगे। तालीम के दर्जा चहारम के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर पंजाब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में मुलाजमीन ने बैनर्स थामे सेक्रेटरी खालिद मंजूर वट्टू और CO नज़ीर हुसैन चीना के खिलाफ नारेबाजी की। तनख्वाहें न मिलने पर हम लोग फाके करने पर मजबूर हो गए हैं। आज भी CO साहब हमें देख के ताला वगैरह लगा के यहाँ से निकल गए हैं। उन्होंने कहा था कि आपका काम हो जाएगा। यार जब काम हो जाएगा आप लिख के दे दें, हमें भी पता हमारा काम हो गया है, हम जाएं। DC साहब ने लेटर लिख के दिया हुआ है इनको, ताहाल अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया। हम अभी सेक्रेटरी के ऑफिस जा रहे हैं और उधर जाके हम बैठ जाएंगे जब तक हमारा ये मामला हल नहीं होगा। जैसे हमें आवाम को उन्होंने देखा है वो चले गए हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन अब हम जा रहे हैं, सेक्रेटरी हमने वहाँ से नहीं हिला जब तक हमारा काम नहीं होगा। खातीन मुलाजमीन का कहना था कि सरकारी मुलाजिम होना हमारा जुर्म बन गया है। महंगाई के दौर में तनख्वाहों के साथ गुजारा नहीं हो रहा, हम बगैर तनख्वाहों के कैसे गुजर बसर करें। हमारा तो फिर तीसरा मंथ स्टार्ट है। आप एक बंदे से पूछें जिसकी 1 माह की सैलरी बंद है तो वो आपको क्या इसका जवाब देता है। ये हमारा सब्र है कि हम जो है 3 माह से सब्र करके बैठे हुए हैं। अब हम सड़क पे आ गए हैं, हमारे रेंट पे घर है। मेहरबानी चले वो देख रहे हैं, लेकिन कम से कम आप देखें सैलरी के साथ गुजारा नहीं होता। 35-40 हज़ार मेरे ख्याल 34-35 हज़ार पहले स्केल की सैलरी है, तो उसमें इनका गुजारा मुश्किल है। तो जब नहीं मिलेगी सैलरी तो फिर क्या हालात होंगे। बादशाह मुलाजमीन से CO नज़ीर हुसैन चीना ने मुज़ाकरात किए। CO ने मुलाजमीन को पीर तक तनख्वाहों की अदायगी करने की यकीन दहानी करवा दी। CO की यकीन दहानी पर मुलाजमीन ने पीर तक एहतजाज मुलतवी कर दिया। मुलाजमीन का कहना था इस पर मामला हल ना हुए तो सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर धरना दे देंगे। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी में झगड़े की इंक्वायरी MS ने 6 रुकनी कमेटी बना दी। प्रोफेसर तैयबा वसीम, प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर, डॉक्टर ज़रीन ताज और रज़िया सुल्ताना शामिल हैं।
2 रोज कबल इमरजेंसी में मरीज के लवाहिकीन और डॉक्टर्स में झगड़ा हुआ था। नौजवान वालिदा के इलाज के लिए इमरजेंसी आया था। सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी में लवाहिकीन और डॉक्टर्स के माबेन झगड़े की इंक्वायरी के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी गई। कमेटी 48 घंटों में तमाम तर तहकीकात करके अपनी सिफारिशात MS को अरसाल करेगी। कमेटी के चेयरपर्सन सरबराह शोबा गायनी प्रोफेसर तैयबा वसीम होंगे। दीगर मेंबर में सरबराह आर्थो प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर, मेंबर सरबराह मेडिकल यूनिट 3 शामिल हैं। चीफ कंसल्टेंट गायनी डॉक्टर जैन ताज और नर्सिस सुपरिटेंडेंट रजिया सुल्ताना शामिल हैं। वाज़े रहे कि 2 रोज कबल इमरजेंसी में मरीज के लवाहिकीन और डॉक्टर्स में झगड़ा हुआ था। नौजवान वालदा के इलाज के लिए इमरजेंसी में आया था। वज़ीर आला मरियम नवाज से सऊदीया के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब ने साबिक सऊदी गवर्नर को इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सियाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट को यकीनी बनाया है। सऊदी सरमायाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मराआत दी जाएंगी। साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए नहायत अहम हैं।